اس وقت کی کٹھوا سے بڑی خبر آپ کو دے دیں. کٹھوا ضلع سے بڑی خبر آ رہی ہے. بنی علاقے میں پل منہدم. جی ہاں, بنی علاقے میں پل منہدم, بڑا سانحہ ٹلا. چند سال پہلے ہی کروڑوں روپے سے کیا گیا تھا تعمیر. لوگوں نے لگایا ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام. بڑی خبر اس وقت کی کٹھوا ضلع سے آئی ہے. بنی علاقے میں پل منہدم ہوا ہے, بڑا سانحہ ٹلا ہے. چند سال پہلے ہی کروڑوں روپے سے کیا گیا تھا اسے تعمیر, اور لوگوں نے لگایا ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام. کٹھوا ضلع کے بنی علاقے میں پل منہدم ہوا ہے, بڑا سانحہ ٹلا ہے. چند سال پہلے ہی کروڑوں روپے سے کیا گیا تھا یہ تعمیر. لوگوں نے ناقص مٹیریل کے استعمال کا لگایا الزام. جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے یو ٹی کے لیے نئی صنعتی ترقیاتی پالیسی کا اعلان کیا. ایل جی نے اس امید کا اظہار کیا کہ نئی پالیسی سے صنعتی شعبے کو تقویت ملے گی اور یو ٹی کی ہمہ جہت ترقی ہوگی. پیش ہے یہ رپورٹ. مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کی صنعتی ترقی کے لیے سینٹرل سیکٹر کی اسکیم کو منظوری دی ہے. جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے 28,400 کروڑ روپے کی نئی صنعتی ترقیاتی پالیسی کا اعلان کیا. حکومت نے طویل مدتی منصوبہ تیار کیا ہے اور یہ اسکیم سال 2037 تک جاری رہے گی. اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ خطے کی متوازن اور پائیدار سماجی اقتصادی ترقی ہوگی اور 4.5 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. ایل جی نے کہا کہ اس پالیسی سے سرمایہ راغب کرنے کی حوصلہ افزائی ہوگی اور موجودہ صنعتوں کو تقویت ملے گی. At this historic occasion to announce a new industrial development scheme 2021 for New Jammu and Kashmir is from the period of date of notification up to the year 2037 with a total outlay of rupees 28,400 crores. Will encourage new investment, substantial expansion, and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir. Employment to more than 4.5 lakh, equitable, balanced and sustainable socio-economic development of the region. ایل جی نے کہا کہ اس پالیسی کے ثمرات جموں کشمیر میں بلاک سطح پر اور دور دراز علاقوں تک پہنچیں گے. انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت 13 شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے, جن میں سے ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, ٹورزم پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے. ایل جی نے کہا کہ انتظامیہ صنعتوں اور تاجر طبقے کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے. Focus areas have been prioritized for investment and Government of Jammu and Kashmir has finalized 13 sector-specific policies for wooing the investors based on local potential. The policy lays a special focus on creation of zones wherein the industrially backward areas will be given topmost priorities and higher incentives. آیوشمان ہیلتھ اسکیم کا ذکر کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ اس سے طبی شعبے کا منظرنامہ تبدیل ہوگا. کشمیری پنڈتوں کے معاملے پر ایل جی نے کہا کہ پی ایم امپلائمنٹ پیکج کے تحت تمام پوسٹ پر کی جائیں گی. ایل جی نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی باز آبادکاری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بیورو رپورٹ, نیوز 18 اردو. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کی صنعتی ترقیاتی پالیسی کے لیے سینٹرل سیکٹر اسکیم کی منظوری کا خیر مقدم کیا. امت شاہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کو دہشت گردی اور علیحدگی پسندی سے دور کر وہاں ترقی کی راہ ہموار کی ہے. امت شاہ نے کہا کہ 28,400 کروڑ کی منظوری سے مودی جی کے دل میں جموں کشمیر کے لیے خصوصی جگہ کا اظہار ہوتا ہے. اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے نئی صنعتی پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے اس سلسلے میں ایل جی اور مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا. میں مبارکباد یہ دینا چاہتا ہوں یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو, یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو, ہندوستان کے وزیر اعظم کو اور ہوم منسٹر کو, جو آج انڈسٹریل پیکیج اجرا کی گئی ہے. مجھے پختہ یقین ہے کہ اس میں ہمیں کافی انویسٹمنٹس آئیں گی اور انڈسٹریاں لگیں گی, کیوں اس میں جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ
इनकी बदौलत हमारे 4-4.5 लाख लोगों की रोज़गार के लिए एक मौका फराहम होगा। मैं अपनी इंडस्ट्रियल बरादरी से जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं उनको भी कहूँगा कि पहले तो हमें खुद फ़ायदा उठाना चाहिए इसका, और जहाँ हम नहीं कर सकते हम बाहर जो बाकी स्टेट्स में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको हम दावत देते हैं, आइए इन्वेस्टमेंट करिए। जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रीज। एनआईए ने जम्मू के 5 और पंजाब के एक मकाम पर छापे मारे। जरा के मुताबिक नियरको टेररिज्म सरगर्मियों के जिम्मन में ये छापे मारे गए हैं। एनआईए ने जम्मू जिले के चत्ता इलाके में छापे मारे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार हिंद पाक के बीच मुज़ाकरात की वकालत करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर से मुंसलिक तमाम मसाइल का हल बातचीत में ही मुज़मिर है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में अपने वालिद और साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के मौके पर उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की पॉलिसियों पर अब भी चलने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ताकत के बल पर किसी भी आवाज़ को ज़्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता है। उन्होंने मरहूम लीडर को खराज अक़ीदत पेश किया और दारा शिकोह बाग में उनके मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। उनके हमरा अब्दुर्रहमान वेरी, सूफ़ी अब्दुल गफ्फार, एडवोकेट शेख जावेद व दीगर लीडरान भी थे। लीडरान ने मरहूम को एक अजीम सियासी शख्सियत करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनों के कई वफूद से भी मुलाकात की। अगर जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से, इस तकलीफ से बाहर निकालने का कोई हल है तो वाहिद वही है जो मुफ्ती साहब कहते थे, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। वो बार बार कहते थे कि इस खित्ते में जो अमन का रास्ता है वो जम्मू कश्मीर से गुजरता है, और जम्मू कश्मीर में अमन का जो रास्ता है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में अच्छे ताल्लुकात, दोस्ती, बातचीत से हासिल हो सकते हैं। वो चाहते थे जम्मू कश्मीर में रिकंसिलेशन हो, बातचीत हो, डायलॉग हो, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, बॉर्डर्स पे सीज फायर हो जैसे कि उनके वक्त में हुआ था, आपस में बॉर्डर इरेलीवेंट हो जाए जैसे उन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोल के दिखाया था। तो उन्होंने एक नक्शा दिया था, क्योंकि आप किसी भी कौम को ताकत के बलबूते पे नहीं दबा सकते ज्यादा देर। वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। बॉर्डर्स को इरेलीवेंट करो, बातचीत करो, पाकिस्तान के साथ डायलॉग करो, इसके बगैर। पीडीपी के राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद की सरबराही में कुपवाड़ा में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मरहूम मुफ्ती सईद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। फयाज मीर ने गुपकार अलायंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलायंस की जमातों ने मुख्तलिफ जगहों पर प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े किए। उन्होंने कहा कि उसके हुकूक सामने ना लाए गए तो ये अवाम के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम के साथ हर वक्त धोखा किया गया है। मीर ने कहा कि इंजीनियर रशीद को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। पीएजीडी को एक, अगर उनको आगे चलना है उनको एक रोड में लाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा अभी हुआ। अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए गए और वो अवाम के साथ धोखा है। यहाँ बहुत धोखा हुआ अवाम के साथ आज तक। लोगों के जज्बात के साथ खेलने लगे। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये लोगों के साथ धोखा है। नहीं, अगर पीएजीडी ऐसे ही चलेगा तो बिल्कुल नहीं मानते। जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब का सवाल है, जैसे बाकी लीडरों को रिहा किया गया, इसी तरह इंजीनियर रशीद भी जो है वो 2 बार यहाँ के एमएलए रह चुके हैं और लोगों का काम भी किया है, उसको भी रिहा किया जाना। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से जम्मू में एहतजाज किया गया। फ्रंट के कारकुन हाल ही में आरटीआई के जरिए मंजर आम पर आई साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की मुबैना फजूल खर्ची के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उनका कहना है कि वज़ीर आला की कुर्सी पर रहते हुए महबूबा ने अवामी रकूमात का गलत इस्तेमाल किया है। एहतजाजी कारकुन ऐसे मामलात की तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। जितने भी पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी जानकारियां पेपर के माध्यम से लोगों के बीच के अंदर आनी चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं, कितने कितने रुपए खर्चे, कितने कितने का सामान उठा करके अपनी नई नई कोठियों के अंदर ले गए। ये भी आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास करना चाहता हूं और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं। ये सामान वहां है कि नहीं है, इस विषय के अंदर भी जानकारी दीजिए। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को बर्फबारी के बाद कई मुश्किलात का सामना है। मुतादिद इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करना बाकी है। कई इलाकों में लोग खुद सड़कों से बर्फ हटाते देखे गए। पेशे की रिपोर्ट। भारी बर्फबारी के सबब
आज भी पुलवामा के मुख्तलिफ बालाई और मैदानी इलाकों का सड़क राब्ता मुनक़ता रहा। कई इलाकों में लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। पुलवामा की अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है, लेकिन कस्बा पुलवामा के अंदरूनी राब्ता सड़कों के अलावा मुख्तलिफ देही इलाकों की सड़कों से बर्फ न हटाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जंदवाल और मुल्हिका देहात के राब्ता सड़कों से बर्फ न हटाने के बाद लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। जंदवाल के लोगों के मुताबिक इलाके में बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ये इकदाम उठाया गया। योर आव कहीं रात डोजर सूजमुत तम तत मुंड योर बिल्कुल तुलुन कहीं बेमार हो सड़क पे थमित कड़ित वो कोर नंबरदार ऐलान मस्जिद पे वो द्राय हल शीरी कर मगर ये अंदन क्या। जिला इंतजामिया गांधरबल बर्फबारी रुकने के बावजूद लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम हो गई है। चंद इलाकों को छोड़कर बेशतर मकामात से बर्फ हटाने का काम बाकी है। न्यूज 18 उर्दू की जानिब से मसला उजागर करने के बाद म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल मुतहरिक हो गई है। उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। काउंसिल के चेयरमैन ने महकमे R&B को तमाम मसले का जिम्मेदार ठहराया। कंगन तहसील कई देहात समेत कई गाँव का राब्ता अभी तक मुनक़ता है। अरपश तेली मोहल्ला परनकनाल रोड और मुल्हिका इलाकों में सड़कें बंद रही। लोगों का कहना है कि हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। बिजली और पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बीजेपी जिला सदर गुलाम हसन राथर ने जिला इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया से मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कनाल पे बर्फ ऐसे ही पड़ी है जनाब, यहाँ एक औरत एक मौत हो गई उसकी, तो बर्फ जाने की कोई किसी ने आने की, यहाँ हाईवे से आधा किलोमीटर दूर है ये रोड। नया रोड से पहले वो हमें क्लियर करने पड़े। नया रोड जो हमारे हैं यहाँ म्यूनिसिपल काउंसिल में वो हमने क्लियर किए। उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो आए थे कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है गांधरबल की वो कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है। और मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं जहां भी लगे उसको कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कोताही है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिला शोपियां के कई इलाकों में अभी भी सड़कों से बर्फ हटाने का काम बाकी है। इन इलाकों में राब्ता जिला सदर मकाम से कटा हुआ है। कनीगाम शोपियां में लोगों ने खुद सड़कों से बर्फ हटाई। नौजवानों के ग्रुप ने इस सिलसिले में पहल की है। इलाके के लोगों का कहना है कि हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया गया। इसके बाद लोग सामने आए और बर्फ हटाने का काम खुद शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं, लापरवाही बरती गई। गाँव में जो हालात है उनको मद्देनजर रखते हुए हमने इस वक्त ये इमरजेंसी ऐलान किया और बरादरी को बाहर निकाला। जिला बांडीपुरा के बख्तूर में मरकजी जामा मस्जिद के इमाम ने भारी बर्फबारी के बावजूद इलाके में सड़कों से बर्फ हटाने, पानी और बिजली फराहम करने पर MED महकमे बिजली और महकमे जल शक्ति का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि अब गुरेज बख्तूर सड़क को खोलने के इक़दाम किए जाएं। बर्फानी तोदे गिर आने की वार्निंग के पेश नजर गुरेज में अभी कुछ सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अंदरूनी रोडों को ओपन किया। अब मैं यहाँ से PDD का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पावर सप्लाई को बरकरार रखा और PHE का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पानी को भी यहाँ पे बरकरार रखा। जिला बारामूला के उड़ी में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का राब्ता अभी भी मुनक़ता है। उड़ी टाउन समेत कई इलाकों में मुतादिद मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया की जानिब से अभी भी सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया। राब्ता सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि बिजली, पानी और तिब्बी सहूलियात के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात को जल्द बहाल करने की अपील की। त्राल में बर्फबारी के बाद इंतजामिया मुतहरिक है, तहम अभी तक कई दूर दराज इलाकों में सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। लोग खुद हलचली करके सड़कों से बर्फ हटा रहे हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि बाजारों में अशया खुर्दनी महंगे दामों में फरोख्त हो रही है। ये ताहम कस्बे में म्यूनिसिपल कमेटी ने तमाम रास्तों से बर्फ को हटा दिया है। वो 20 रुपये 40 रुपये 140 रुपये कुन 5 रुपये कुन अड़े कुन 50 रुपये कुन मान अंडा कौन लोगों के हमारी मशीनरी 4 दिन से लगातार है और जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितने भी डिपार्टमेंट है वो इस मुहिम में काम कर रहे थे, चाहे तहसीलदार साहब हो, ADC साहब हो। एंड अभी तक सब कुछ ठीक चला है एंड होपफुली के 1-2 दिन में हमारी रोड भी खुल पाएगा। एंड कोशिश हमारी ये रहेगी कि जितने भी बेसिक एसेंशियल्स है वो ठीक रहेगी। कुंजर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। म्यूनिसिपल कुंजर के सदर ने भी इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया।
उन्होंने सड़कों से बर्फ न हटाने पर इंतजामिया की तनकीद की। एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरे ख्याल से टोटली फेल हो चुकी है। अभी तक रोड बंद पड़े हैं। बिजली तो पिछले दो दिनों से नहीं चल रही है यहाँ पर। कस्बा कुलगाम के पनीपुरा, कंडीपुरा, छत्ताबल, आगर देवसर और उड़ेगाम देवसर की राब्ता सड़कों से बर्फ न हटाए जाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने म्युनिसिपल हुदूद में आने वाले इलाकों में बर्फ हटाने की मांग की है। कुंड टंकीपुरा केलम में मोहम्मद अयूब नामी शख्स के मकान की छत गिर गई है। मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। फरसल और आरूनी के दरमियान अहम सड़क भी बंद है। मकामी औकाफ कमेटी ने इलाके में बर्फ हटाने पर जोर दिया है। मेन टाउन है, यहाँ पर जो है जेसीबी नहीं आ रहे हैं। आप देख लीजिए हालात क्या है। पेशेंट इस वक्त तवीरा में खड़ा है जी। यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज नहीं है इधर टाउन में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर आज से परवाजों का आगाज हुआ। शदीद बर्फबारी की वजह से पिछले 4 दिनों से परवाजें मुअत्तल थीं। इसी दौरान मुसाफिरों को पैदल ही एयरपोर्ट की जानिब जाते देखा गया। आईजी रोड पर भारी ट्रैफिक जैम की वजह से मुसाफिर अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए पैदल ही चल पड़े। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मुसाफिरों को शदीद दुश्वारियों का सामना रहा। दोपहर के वक्त न्यूज़ 18 के नुमाइंदे समीउल्लाह ने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से 4 दिन के बाद आज फिर से एक बार परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां हैं। ये जो मुसाफिर यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उनको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अब पैदल ही जो है एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पूरी स्नो क्लियरेंस नहीं हुई है। अगर पूरी यहाँ पे स्नो क्लियरेंस होती तो यहाँ पे जो है काफ़ी आसाइश पहुँचती पैसेंजर्स को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये पैसेंजर्स यहाँ पे चल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्यों पैदल चल रहे हैं? सर यहाँ पर ट्रैफिक जैम में बहुत मुश्किलात हो गई हमें सर। फ्लाइट है अभी तो मिस भी हो सकती है सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कुछ काम किया ही नहीं। यहाँ पर कोई बर्फ़ तो सुबह से बोल रहे हैं कि लोग यहाँ हटा ही नहीं है, तो सुबह से बहुत लोगों की फ्लाइट मिस हो सकती है। यहाँ की हुकूमती देन है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको देखना चाहिए था। आज 3 दिन बाद इतने मुश्किलात से घर से निकले हुए हम, किसी की कोई परवाह नहीं है। फ्लाइट तो हमारी वेट करेगी नहीं, तो दे शुड मेक सच अरेंजमेंट्स। सवारियाँ लेकर जाना था एयरपोर्ट, सवारियाँ पैदल चल रही है, मैं पीछे पीछे उनके पीछे पीछे आ रहा हूँ। वजह क्या है? लेकर खाली वजह जामिंग, मतलब ये सोनोफॉल जो हुआ है इसमें कोई कुछ उठाता नहीं है, कुछ रास्ते सब बंद है, ये मसला है। अगरचे फ़ज़ाई सर्विस को बहाल किया गया है, लेकिन यहाँ ज़मीनी सतह पे अगर हम देखेंगे तो लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलात हैं। जो यहाँ पे स्नो क्लियरेंस होनी थी वो नहीं हुई, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से मैं नेटवर्क 18 के लिए समीउल्लाह। मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल, लोगों को दरपेश मुश्किलात कश्मीर न्यूज़ में आगे भी जारी रहेंगी। श्रीनगर एनकाउंटर 4G से मुताल्लिक LG का बयान भी शामिल होगा। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के बाद।